Today we have a distinguished guest who is expert in biomedical engineering research. Please join me in welcoming Engineer Ali Raza. Uh, Thank you so much for warm welcome and this opportunity. Am I audible? Hello? थोड़ी सी तेज करें आवाज. Is that fine now? Yes. Okay. Thank you so much for this warm welcome and having this timely seminar and webinar about the research of biomedical engineering and choosing me as a host to convey my message and skills toward the students. So now, should we start now? Yes. Okay. Uh, Assalamu alaikum, everyone. This is Ali Raza. I have been working in this field, or maybe the student of this field, since 5, 6, 7 years. Uh, I've been completed my bachelor's from Liaquat Medical University Institute of Biomedical Engineering, and currently I'm doing my master's leading to PhD in South Korea, one of the prestigious university of South Korea, DGIST, and I'm my main research area in biomedical engineering is neural engineering, PCI, neural interface. We often design different type of the electrode, wireless systems, and sensors to detect the neural activity and to wireless communication and these all things uh, in my lab and in my research as well. So currently, I'm working on BCI, the wireless system. Uh, yeah, this was my brief introduction. So, Now uh, we'll start our discussion on the vital roles of biomedical engineering research. Can you share any recent advancement and trends in biomedical engineering research that our audience or attendees should be aware of? Basically, what actually I believe about biomedical engineering is that it is the one of the finest field in modern area, and its research is somehow most advanced from all perspective. तो हर एक्चुअली हमें एक फायदा है बीइंग अ बायोमेडिकल इंजीनियर होने का कि ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मल्टीपल फील्ड्स का कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ रिसर्च हो रही है. As long as the question is about what is the current research happening, तो मैं सिंपली अगर जितने मैंने पेपर्स पढ़े हैं या रिसर्च किए तो हर फील्ड में आप जो भी उठाएं लाइक बायोमटेरियल्स, neural engineering, neuroscience, and neural network, and of course, drug delivery, medical imaging. These all fields are working on different types of ideas and more advancement in technologies in the medical field. Like some example, if I consider only brain, then there are research on the wireless communication with brain, Neuralink project, mind reading projects, and motor control system through the chips, and neural prosthetics. These all things are neural exoskeletons. So these all things are the major research currently, and especially अगर और इन डेप्थ में जाएं तो अभी काफी प्रोजेक्ट हो रहे हैं ब्रेन ऑन चिप
neurons on chip means that to understand and regenerate the neurons for the different type of the disease. तो इन सब में एक बीइंग अ बायोमेडिकल आप बहुत ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं. उसके अलावा सॉफ्ट रोबोट्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, cancer cell extraction through the robots, and these all things are happening in the research of biomedical engineering. So currently I'm to share my presentation. Maybe you have insights and get the idea. Okay. Uh, yeah. So let's officially start our webinar with the presentation and basic idea of biomedical engineering. So, let's discuss about the first objective of our seminar, that the scope of biomedical engineering. काफी स्टूडेंट जब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक्सीडेंटली या जिस तरह से कहें कि मेडिकल में नहीं होते, मोस्ट प्रोबेबली तभी आते हैं या कुछ का क्रेज भी होता है इस फील्ड में. तो बेसिकली उनके दिमाग में पहले 2 साल या ऑफ कोर्स 3 साल तक सीनियर से पूछना, टीचर से पूछना कि भाई इस चीज का स्कोप क्या है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी अनयूजुअल थिंग हैपनिंग इन आवर कोर्सेज के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या, कॉमन पीपल डोंट नो अबाउट दैट. तो बेसिकली मुझे इस चीज पे बात करनी थी कि क्या स्कोप है. हाँ, देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन. आप में से काफी स्टूडेंट होंगे, लोग होंगे जो बायोमेडिकल इंजीनियर कहलाते हैं, और राइट आफ्टर द गेटिंग डिग्री, बट देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम. हम कहलाना तो बायोमेडिकल इंजीनियर होता है हमने, लेकिन वी ऑफन फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ बायोमेडिकल टेक्नीशियन और मेडिकल टेक्नीशियंस. तो आपने डिसाइड करना है या भी सही कि आपने बायोमेडिकल इंजीनियर बनना है या बायोमेडिकल टेक्नीशियन बनना है. देयर इज अ डेलिकेट लाइन बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स, दीज टू टर्मिनोलॉजीज. उनको समझना बहुत जरूरी है. तो आप बीइंग इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर अगर काम करना चाहेंगे, देन द होल वर्ल्ड इज जस्ट सीकिंग फॉर यू. मैं करंटली जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, उनमें पूरी यूनिवर्सिटी बायोमेडिकल की बुनियादों पे बनी हुई है. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द रिसर्च हो रही हैं. तो इस फील्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें आप मल्टीपल जगहों पे रिसर्च कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक टेक्नोलॉजीज नहीं है रिलेटेड टू द कैंसर, रिलेटेड टू द ब्रेन, related to the medical imaging. Every day there are much advances are happening in these all things related to the even the genetics, implants. Suppose there are many theories about implants, but things are very complicated in these all things. और उसके अलावा हाँ, अगर आप प्रोस्थेटिक्स की बात करते हैं तो न्यूरल प्रोस्थेटिक में बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई भी एफिशिएंट नहीं है अभी इतना. तो ये सारे गैप्स जो है ना, रिसर्च गैप, ये सारे डिफाइन करते हैं हमारा स्कोप, कि भाई इन गैप को फिल करने के लिए हमें लोग चाहिए. और इन आप क्या समझते हैं, ऑफ कोर्स यू नो दैट इन गैप्स को फिल हमारे बगैर नहीं किया जा सकता. Without a biomedical engineering, they cannot solve the medical technological problem right now with any of the other department students. So we are the major thing. We are the main aspect to solve these all problem. Basically साइंस का मकसद ही ये होता है कि साइंस कुछ प्रॉब्लम सोसाइटी में देखती है, देन उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करती है, देन दे स्टार्ट टू वर्क टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो दीज ऑल प्रॉब्लम्स, कि वो मसले क्या हैं. तो बेसिकली मॉडर्न रिसर्च ये मसले तो जान चुकी है कि भाई ब्रेन में जो है वो अलग अलग डिजीज और डिसऑर्डर से क्या मसले होते हैं.
जैसे सपोज करें हम जानते हैं कि डायबिटीज क्या है, बट वी डोंट नो हाउ टू क्योर इट फॉर द लॉन्ग टर्म। वी डोंट नो हाउ टू क्योर द ब्रेन डिजीज एंड डिसऑर्डर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अभी जो हमारा मेन स्टेप ऑफ मेडिकल है, वो शुरू ही हमसे होता है। अभी जो थेरेपेटिक ले लें, डायग्नोसिस ले लें, सपोज करें देयर इज अ बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो उस बुक में पूरी एवोल्यूशन की गई है कि भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या मेडिकल इंजीनियरिंग ने क्या रोल प्ले किया है, बल्कि ये कहें कि ब्रेन वाज अननोन टू द साइंटिस्ट बिफोर द मेडिकल और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। सो तो मैं ये समझता हूँ, या मेरी जो एनालिसिस है, इट्स नॉट कि मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, इट्स अ टोटली कंक्रीट थिंग ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इवोल्यूशन। मैं कह रहा हूँ आपको कि इससे बेहतर फील्ड शायद मॉडर्न वर्ल्ड में मेडिकल से रिलेटेड हो। Even though I won't consider, I don't want to compare any field, but I won't consider any field close to this field on the basis of modern research, on the basis of technology, on the basis of modern world driving. Suppose if I say that in few years or in after few years we will have doctors, will have robotic doctors and other things, then it's even now hypothetical thing, but the research is going on these all things. तो उन सब का बेस, उन सब का मेजर सेंस वो आपसे मिलता है, आपकी रिसर्च से मिलता है, being a biomedical engineer. So let's discuss the second question कि कंटेम्पररी, ये तो हो गया, चलें ठीक है, कंटेम्पररी वर्ड में हमारा जो है वो बायोमेडिकल का जो स्कोप है वो क्या है। तो इट्स इमेंस। यू शुड बी प्राउड ऑन योर फील्ड, यू शुड बी हैप्पी विद दैट कि आपने कुछ करना है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमने करना कैसे है। लेट्स इवोल्यूएट अवर पोजीशन राइट नाउ कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें क्यों ऐसा लगता है अपने सोशल स्ट्रक्चर्स को देख के, अपने लोगों को देख के, कि भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की इतना स्कोप नहीं है। व्हाट इज द मेन पैरामीटर ऑफ दैट थिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी रिसर्च को हम एवोल्यूएट करते हैं रिसर्च गैप से, कि भाई रिसर्च गैप क्या है इसमें। एंड उस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए हम एक आइडिया के साथ आते हैं, दैट इज अवर प्रपोजल ऑफ आइडिया। तो वो ऐसा आइडिया जो किसी और के पास नहीं है, एंड दैट इज योर इनोवेशन, दैट इज योर रेशनल ऑफ रिसर्च। तो मेन इशू हमारा इन फ्लो या ये कहते हैं कि इन 3-4 पैरामीटर्स के अंदर है कि हम इनोवेटिव नहीं हो रहे। I would really say that if you don't see this field with innovation, with critical thinking, then I think you don't need to waste your time in this field, because it's totally about your innovation, your critical ideas, your new things to explore, new things to explore. That तो हर नया प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, एंड दैट प्रॉब्लम इज रियली रिलेटेड टू द सोसाइटी। वो मेडिकल इशू हैं, उनको सॉल्व करना पूरी मेडिकल साइंस का एक टारगेट है, और उस टारगेट में आपका बहुत बड़ा रोल है बीइंग अ बायोमेडिकल, आपसे मुराद बीइंग अ बायोमेडिकल इंजीनियर। तो बेसिकली हम लोग उन इनोवेशंस को फॉलो नहीं करते। हम आई वुड रिकमेंड के अगर आप सेकंड ईयर क्रॉस करके थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो आप सबसे ज्यादा अगर टाइम दें तो सबसे ज्यादा वो है रिसर्च आर्टिकल पढ़ने में, लिटरेचर पढ़ने में, ताकि आपको पता चले कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं और क्या कमियां हैं चीजों में। वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास लिटरेचर होगा, जब आपके पास वो इंसाइट्स होंगे अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है। तो एक सपोज करें आप प्रपोजल लिखते हैं, वो प्रपोजल जो है वो डिफाइन करता है कि भाई दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। वो इट डजंट मैटर कि वो अभी पॉसिबल है या नहीं, वो आपने अभी नहीं देखना, वो आपने नेक्स्ट स्टेप में देखना है, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजीज देखते हैं कि भाई टेक्नोलॉजीज गैप कितने हैं इसमें, और मुझे क्या क्या करना होगा। ठीक है। तो अब इस तरह का माइंडसेट कैसे बने कि भाई हम देयर आर दिस इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड, हर सेमेस्टर में हम अलग प्रोफेसर सब्जेक्ट। आपकी स्लाइड्स आगे नहीं बढ़ रही।
हाँ, मैं इसी पे बात कर रहा हूँ ना, इसी स्लाइड पे, सॉरी। इट्स अबाउट दैट स्लाइड एक्चुअली। आगे आगे जो है वो हाउ टू राइट अबाउट द रिसर्च आर्टिकल। तो मैं थोड़ा इसका बेसिक्स बता दूं, देन लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो बेसिकली आपने करना क्या है, मैं बीइंग आपको सीनियर समझें या बीइंग आपका कलीग समझें, तो आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। देन आपने अंडर ग्रेड में क्या करना है कि इस तरह का आप डेवलप हो, इनोवेटिव आइडिया को आप पहुंचे आइडिया तक। देखिए, इन इनिशियल 2 years you learn about everything, you learn about surrounding, you learn about the institute and all things. लेकिन थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर द डिसाइडिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ। वो आपको डिसाइड करना है कि इन 2 years में आपने, इट्स माय प्लान है, दिस इज हाउ आई वर्क इन माय लाइक अंडर ग्रेड। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने एक फील्ड चूज करनी है। सपोज आप देख रहे हैं कि आपको, जिस तरह से मुझे जो है वो न्यूरल इंजीनियरिंग में बड़ा शौक था, न्यूरो साइंस से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, बड़ा आई वाज वेरी फैसिनेटेड फॉर द थिंग्स। तो मैंने प्रीवियस जो लास्ट 2 year मेरे अंडर ग्रेड के थे, तो मैं जितने भी मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़े, आई डोंट कंसीडर माय एक्टिविटीज के इंस्टीट्यूट में हम क्या कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एकेडमिक, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं कहें, बल्कि आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े रिलेटेड टू द ब्रेन पढ़े, रिलेटेड टू द ब्रेन पढ़े, रिलेटेड टू द ब्रेन टेक्नोलॉजीज पढ़े। तो आप एक फील्ड थर्ड ईयर में डिसाइड कर रहे हैं कि आपने जाना कहाँ है। देन योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट शुड बी रिलेटेड टू दैट। आप चाहे कुछ कितनी भी छोटी चीज बनाए, इट डजेंट मैटर, आप एक कॉमन सी चीज बना दें, लेकिन फील्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होना। देन इन ऑल दीज 4 सेमेस्टर आप उससे सिमिलर उसी प्रोजेक्ट को एडवांस करें, एंड फाइनल ईयर में आप कोई ऐसा प्रोटोटाइप बनाए जिससे आपको डिग्री मिल जाए, एंड कि आपका एक वर्किंग आइडिया हो। तो एक प्लान्ड वे में आप चलेंगे चीजों को अंडर ग्रेड में, देन यू विल रीच द प्लेस वेयर यू वांट टू बी। आप इतना डाइवर्स अभी जितना जितना आप आगे बढ़ेंगे अपनी एजुकेशन में, आपको उतना उतनी कन्वर्जेंस करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, यू हैव टू चूज द स्पेसिफिक टॉपिक एंड मूव फॉर द आइडिया। तो आप उस चीज पे काम बहुत ज्यादा करें कि आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ें उससे रिलेटेड, देन यू मेक द थिंग, यू सी द गैप एंड देन थिंक अबाउट द आइडिया कि हाउ कैन आई सॉल्व दीज ऑल प्रॉब्लम्स। So this was the basic concept and basic scenario of the biomedical engineering field. Now, um, since our main topic was related to the research article writing, and this was the, of course, comprehensive introduction about the biomedical engineering. So, am I audible for everyone? Is there any problem? No, Hello? sir. Okay. Thank you for confirmation. Yeah. So basically, I would not recommend to start from abstract any paper, but let's see कि flow किस तरह का पेपर का होता है, तो मैं उसी हिसाब से होता हूँ। तो सपोज करें आपने कई रिसर्च आर्टिकल पढ़ के आपने 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 क्या किया है कि आप एक रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं जो आपका पसंदीदा टॉपिक है, और ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, आप उसकी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। तो उस सिनेरियो में देखें कि एक पेपर आप किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, पेपर लिखने का फायदा क्या है फॉर द स्कॉलरशिप्स? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अंडर ग्रेड में कोई भी पेपर पब्लिश करते हैं, देन प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी विल रिकमेंड यू, यूनिवर्सिटी विल like catch you quickly, the university will see you as an exceptional student। तो पेपर आर्टिकल लिखना मैं तो सबको कहता हूँ, अपने जूनियर्स एंड ऑल द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के, एटलीस्ट आप ट्राई करें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अपना रिसर्च आर्टिकल में कन्वर्ट करें, एंड देन यू शुड पब्लिश दैट आर्टिकल इन द prestigious journal. If it's not happening, then you should publish in any any of the HEC indexed journal in Pakistan as well. So it's very important for your scholarship, for your jobs, and for your every career aspect. So let's start from the abstract। abstract आप पहले, सबसे पहले बात तो abstract आप सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो जनरली abstract में आपका क्या होता है, आप बेसिकली
जर्नल के मुताबिक आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उसमें मोस्टली आपका होता है कि बैकग्राउंड होता है, थोड़ा-सा आप अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च कि भाई आपकी मेन रिसर्च क्या है, एंड देन द मेथड यू डिफाइन द मेथड कि हाउ वो ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल करने थे आपने, जो ऑब्जेक्टिव आपकी रिसर्च के थे, वो आपने किस तरह से कंप्लीट किए, एंड देन दीज ऑल थिंग्स यू सी थ्रू द मेथड। आप एक कंप्रीहेंसिवली बताते हैं कि भाई इस मेथड के तहत मैंने ये रिजल्ट निकाले हैं, और उसके बाद आप जो की रिजल्ट हैं वो डिफाइन करते हैं अपने कंक्लूजन में, और सॉरी अपने एब्स्ट्रैक्ट में, एंड देन द ब्रीफ कंक्लूजन, और उसके लास्ट में आप कीवर्ड्स देते हैं ताकि लोग जब ढूंढें आपका पेपर, लोगों को जब चाहिए आपका पेपर, तो वो इजीली एक्सेस कर सके ऑन द बेसिस ऑफ दोस कीवर्ड्स, या एक ब्रीफली मेन वर्ड्स आप देते हैं लास्ट में। तो उसके बाद अच्छा, आई वुड अगेन रिकमेंड दैट कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप जब भी पेपर लिखें तो आप रिजल्ट से शुरू करें। मैं पेपर के फ्लो के मुताबिक चल रहा हूँ कि पेपर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, और ये चीज़ें आप अगर अभी लिखने या पेपर राइट करने के लिए नहीं इतने इतने आप आगे नहीं गए हैं, तो आप ये चीज़ें इसीलिए भी सीखें ताकि आप पेपर पढ़ सकें। पेपर इज़ नॉट अ कॉमन लाइक अ बुक कि आप फ्लो के साथ पढ़ते जाएं एंड इट यू कैन अंडरस्टैंड इट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन का अलग अलग मकसद होता है, तो आपको पेपर को पढ़ने के लिए भी ये समझना जरूरी है कि भाई पेपर में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें किस किस हेडिंग्स में होती हैं। तो उसके लिए भी ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर नहीं भी लिख रहे हैं, देन इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल के to understand the paper or read any paper, and which is very mandatory for you to understand the literature gates. So basically इंट्रोडक्शन में एक तो प्रॉपर जो है वो आपको बैकग्राउंड रिसर्च कॉन्टेक्स्ट आपका बताता है, आपके रिसर्च को डिफाइन करता है कि भाई टॉपिक क्या है, इट टेल अबाउट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और उस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में आप कंप्लीटली कंप्लीटली आप अपने टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू देते हैं, आप बताते हैं टॉपिक के बारे में कि आपका टॉपिक क्या है, यू सेट अ स्टेज कॉन्टेक्स्ट अबाउट योर टॉपिक, और प्रीवियस उसके अलावा आप जितनी भी प्रीवियस रिसर्च हो गई हैं आप उनको कोट करते हैं, उन्होंने उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, उन रिसर्च ने क्या मालूम किया है, और उसके साथ-साथ आप उन रिसर्च पे एक क्रिटिक भी लिखते जाते हैं। सपोज़ करें मैं कोई बीसीए सिस्टम बनाता हूँ, देन मैं दूसरी बीसीए सिस्टम जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उनको पढ़ूँगा, तो उनको मैं कोट करूँगा कि भई फलाँ रिसर्चर ने ये मॉडल बनाया है, एंड देन आई पुट माय क्रिटिक कि उस मॉडल में क्या इश्यूज़ हैं। क्यों वो कंपैटिबल मॉडल नहीं है, क्यों वो मॉडल जो है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज योर क्रिटिक ऑन द लिटरेचर। तो लिटरेचर में एक तो आपने लिटरेचर का या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो एक तो आपने प्रीवियस रिसर्च को देखना है, देन यू हैव टू पुट लिमिटेशन एंड रीड द लिमिटेशन ऑफ दीज ऑल स्टडीज के मसला क्या है इस स्टडीज में, और उसके अलावा फिर उन लिमिटेशन की बुनियादों पे आप एक फ्लो बना के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई ओवरऑल प्रॉब्लम क्या हो रही है। सपोज करें मैं कहूँ कि मेरी जो रिसर्च है वो मेरा इलेक्ट्रोड है, वो जो है ईईजी सिग्नल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा देते हैं। ईईजी सिग्नल का मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि भाई जितने भी ईईजी बेस्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा ब्रेन की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, और ब्रेन के सिंस सिग्नल बहुत डिटोरेटेड होते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताना होता है कि भाई मसला क्या है, चीज़ों में मसला क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आप बैकग्राउंड में अपने जो है वो लेट्स सी वो आगे स्लाइड है, देन आई विल डिस्कसिंग दैट। ओके, देन द आप जो है अपनी स्टडी का पर्पस बताते हैं, सेक्शन एक्सप्लेन कि आपकी रिसर्च क्यों ज़रूरी है। ओके, आपकी रिसर्च को इसको कह दें कि आप सिंपल एक डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ योर रिसर्च, एंड उसके उसके हवाले से आपकी रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, वो एक कॉन्टेक्स्ट पूरा जब आप बैकग्राउंड लिखते हैं बाद में बनाते जाते हैं। मैं आपको समराइज़ करूँगा, तो देन आई विल बी गोइंग विद द फ्लो।
और आप इंट्रोडक्शन में अपने ऑब्जेक्टिव्स या सिंपली हाइपोथेसिस वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हैं। इट इज डिपेंड, अगेन इट्स डिपेंड ऑन द पेपर रिसर्च जर्नल के वो किस तरह से आपको चीजें जा रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो मेन फैक्टर है। अगर आप किसी भी बड़े जर्नल में पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, आप आगे अपने पेपर की जो है वो इट डजेंट मैटर कि आपने एज लॉन्ग एज आपकी इंग्लिश करेक्ट है, तो मेन जो जर्नल अच्छे जर्नल होते हैं वो इस चीज को बहुत देखते हैं कि भाई रैशनल ऑफ रिसर्च क्या है। कि आप बताते हैं कि ये रिसर्च क्यों जरूरी है मेरी, ठीक है। अब जस्टिफाई करते हैं कि मेरी रिसर्च में ऐसा क्या है जो दूसरों की रिसर्च में नहीं है। व्हाट इज द इनोवेशन ऑफ योर रिसर्च, व्हाट इज द आइडिया ऑफ योर रिसर्च जो कि यूनिक है, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड योर रैशनल ऑफ रिसर्च एंड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग एनी पेपर। तो इंट्रोडक्शन का फ्लो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं कि पहले आप एक कम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड दे दें कि भाई हो क्या रहा है। देन यू पुट द लिमिटेशन ऑफ दोज ऑल स्टडीज जो आपने लिटरेचर से उठाई हैं, गैप बताने आपने उन स्टडीज में क्या क्या मसले हैं। देन यू हैव टू पुट मे बी यू हैव टू पुट योर बेसिक रेशनल ऑफ योर रिसर्च के भाई मेरी रिसर्च जो है वो किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। एंड देन यू हैव टू गिव द objective for your research, and in case if there is any hypothesis, then you can put the hypothesis of your research. So this was the introduction. uh, I'm going with the flow. So उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है that is your method. बेसिकली जो रिसर्च हम स्पेसिफिकली अगर बायोमेडिकल की बात करते हैं तो वो अक्सर हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं, तो उस प्रोटोटाइप की बुनियादों पे हम जो है वो अपना मेथड डिफाइन करते हैं। मेथड से मुराद ये होता है कि आपका रिसर्च पेपर या आपका रिसर्च किस तरह कंडक्ट की गई है। आप बताते हैं पूरी टेक्निक्स, टूल्स जो भी यूज़ किए हैं आपने आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं वो आप सारा बताते हैं, और एक पूरा प्रोसीजर बताते हैं कि भाई हम इस कंक्लूजन की बुनियादों पे कैसे पहुंचे हैं, राइट। So this comes in your method. So एक्चुअली मेथडोलॉजी के दो टाइप्स होते हैं, या कह दें कि रिसर्च डेटा के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिसर्च है सारी ऊपर वाली, ये मेटा एनालिसिस हो गया या सिस्टमेटिक रिव्यू हो गया, दीज ऑल आर द सेकेंडरी रिसर्चेज, जिसमें आप डेटा जो है वो किसी और आर्टिकल से लेकर फिर अपने रिजल्ट्स बनाते हैं। और जो प्राइमरी रिसर्च होती हैं वो आप बेसिकली क्या करते हैं कि वो रिसर्च जो है वो आप खुद ही कंडक्ट करते हैं, यानी कि रिसर्चर खुद ही इन्वॉल्व होता है टू कंडक्ट द रिसर्च एंड टू कलेक्ट द डेटा एंड ऑल दीज थिंग्स। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बायोमेडिकल की रिलेटेड, जो मोस्टली हमारे यहाँ रिसर्च हो रही होती है, जो हम स्टूडेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। देन वी राइट अबाउट दैट प्रोटोटाइप, के उस प्रोटोटाइप के बारे में हम एक पेपर, अगर सपोज करें आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपने जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, देन हाउ विल यू डू दैट। आपने एक पूरा प्रोटोटाइप बनाया, उसके रिजल्ट्स वगैरह निकाले आपने, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म सारे किया आपने, उसके या डिवाइस जो भी आपने डेवलप की, उसके बाद आप उसको एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाएंगे। सपोज करें आपने एक फ्लो डायग्राम बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया आपने पूरे हमारे पास सिंस इतने एडवांस टूल नहीं है यूनिवर्सिटीज में, तो हम सिंपली फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि भाई किस तरह से ये मॉडल जो है वो डिजाइन हुआ है, पूरा उसके कंपोनेंट्स एंड ईच और एवरीथिंग। उसके बाद आप अपनी मेथड में बेसिकली जितने भी आपने सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, टूल्स यूज किए हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं, यू डिस्क्राइब दीज ऑल थिंग्स
and then the prototype development, that would be the like आपने जो है वो फाइनलाइज करना होता है ग्रेजुअली सारा कुछ अपना प्रोटोटाइप आपने किस तरह से डिजाइन किया, क्या प्रॉब्लम्स आए, इन ईच एंड एवरीथिंग यू डिफाइन इन दिस पोर्शन कि इट डजेंट मैटर कि कोई ज्यादा मसले आ रहे हैं, सपोज करें आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले पहले वो ये आपके रिजल्ट डिजाइन नहीं दे रहा, देन यू ऑल्सो, तो आपको वो भी मेंशन करना है। देन यू हैव टू टेल दैट कि आपने डिजायर रिजल्ट्स कैसे पाए फ्रॉम दैट प्रोटोटाइप, यू हैव टू गो थ्रू द ऑल मेथड्स एंड जो टेस्टिंग्स हुए, एंड देन दीज ऑल उसके बाद जो आपने दोबारा से चीजें चेंज की, आप वो सारी चीजें इस पोर्शन में डिफाइन करते हैं। ये पोर्शन कम्प्रीहेंसिवली ये बताता है कि आपने कैसे किया है काम, और आपका जो मेथड था, टूल्स थे, फैब्रिकेशन टेक्निक्स थी, प्रोसेस थे, असेंबल कैसे किया किसी प्रोजेक्ट को, और बाद में आपने टेस्ट और वैलिडिटी कैसे चेक की, रिलायबिलिटी कैसे चेक की, यू ऑल you need to define these all things in this portion. सो अगर आप उसके अलावा अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाह रहे हैं या इन वीवो एक्सपेरिमेंट, जो कि पाकिस्तान में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा कोई है मॉडल जो आप हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स पे ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो कि जिससे उनको नुकसान नहीं हो सकता, और जो कि इन वीवो नहीं है, कोई मसला नहीं है, देन यू कैन डू द क्लिनिकल रिसर्च ऑन दीज थिंग्स एज वेल। तो उसके लिए जिस तरह से जो पहले हमने अभी बायोमेडिकल का मेथड देखा, वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। एक्सपेरिमेंटल मतलब से मुराद के आप खुद तजर्बा कर रहे हैं, रिसर्चर इज डिजाइनिंग समथिंग, डेवलपिंग समथिंग, तो वो एक्सपेरिमेंट इन द लैब, इन द समवेयर, और या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो, तो दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एंड देन ऑब्जर्वेशनल सपोज आप कोई ड्रग देते हैं किसी भी, लाइक आपने कोई ड्रग का एक्सपेरिमेंट करना है, देन यू गिव द ड्रग टू दैट पर्सन, और आप उसकी बिहेवियर और दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं उनके साथ। यानी कि एक चीज़ को आप लाइक द रिसर्च क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन द रिसर्चर ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व कैसे कर रहा है। तो हमने पहले जो ये चार्ट देखा था, तो इसके मुताबिक जो वीकेस्ट स्टडीज होती हैं, तो इस टाइप की स्टडीज इस वजह से होती हैं क्योंकि ये मोस्टली बेस ऑफ द जो है वो सब्जेक्टिव रीजनिंग की बुनियादों पे होती है, यानी कि मोस्टली ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्चर होती है। तो वो जो है वो थोड़ा बहुत ना बियास्ड हो जाता है, इस वजह से दीज आर द वीक रिसर्चेज। उसके अलावा केस स्टडी डिजाइन है, तो केस स्टडी में ये होता है बेसिकली आप एक मखसूस केस लेते हैं। सपोज करें आप पाकिस्तान का केस ले रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में फिलहाल इशू है, एजिंग लाइक डायबिटिक इशू है, अदर इश्यूज जितने भी हैं, एंड एज वर्सेस डायबिटीज इशू इन पाकिस्तान, या किसी मखसूस एक पेशेंट पे भी हो सकता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी हो सकता है। तो आप एक मखसूस किसी जो है वो टाइप या जो है वो मखसूस केस को एनालाइज कर रहे हैं, देन यू नीड टू गो फॉर द दिस डिजाइन ऑफ अ स्टडी, केस स्टडी। सो एक्चुअली रिसर्च मेथड्स जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, एंड आई होप कि आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे थोड़े बहुत, तो उसका अंदाजा होगा आपको। तो दैट इज के एक क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, मिक्स्ड मेथड होते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा हमेशा इतनी अथेंटिक नहीं होती जितनी क्वांटिटेटिव डेटा होती है आपकी, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा जो होती है वो आप इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और ओपन एंडेड सर्वेज के जरिए से निकाल सकते हैं। तो दीज ऑल टाइप्स आर ऑफ द क्वालिटेटिव डेटा, और जितनी भी हाँ, बाद में जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव डेटा है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द कलेक्शन न्यूमेरिकल डेटा होती है इसमें मोस्टली आपकी, जिसमें सर्वेज, मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, उसके अलावा जो है वो
जितने भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, उसके रिजल्ट वगैरह, वो सारे इस क्वांटिटेटिव रिसर्च की बुनियादों पे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे रिसर्चर भी होते हैं, लाइक कभी कभार आपकी रिसर्च डिमांड करती है, इट्स द ऑल मेथड इज द डिमांड ऑफ योर रिसर्च। इस तरह से आप किसी भी मेथड आप नहीं डिसाइड कर सकते, आपकी रिसर्च क्या डिमांड कर रही है, तो मेथड उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं किसी भी रिसर्च का। तो मिक्स्ड मेथड होता है जिसमें you need to use your both research methods type, like quantitative and qualitative methods. अच्छा, डेटा कलेक्शन इट्स वेरी सिंपल कि आप कोई मखसूस पॉपुलेशन, सपोज करें आप कराची से हैं या हैदराबाद से हैं, तो आप कोई चीज़ हैदराबाद या कराची के पॉपुलेशन के एनालाइज करना चाहते हैं, तो पूरा सिटी जो हो गया वो ऑफ कोर्स दैट वुड बी योर पॉपुलेशन, और आप उस सिटी में से मखसूस लोग लेते हैं। सपोज करें आप कराची में से 100 लोग किसी इलाके से लेते हैं, उनमें वो चीज़ चेक करते हैं, वो आपका हो जाएगा सैंपल साइज। अच्छा, अब सपोज करें आप, कराची इतना बड़ा शहर है, देन यू आर रियली वरीड कि भाई मुझे 100 लोग कौन से चूज करने चाहिए। तो उस वो डिपेंड करता है आपकी सैम्पलिंग टाइप्स पे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल टाइप्स हैं। तो अगर आप सिंपल सैम्पलिंग करते हैं कि जिसमें आप रैंडमली चूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल रैंडम चूज कर रहे होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे होते हैं कि एवरी मेंबर आप, लाइक 1000 लोग खड़े हैं आपके सामने, एंड यू कैन चूज एनीवन फॉर टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट ऑफ 100 पीपल पॉपुलेशन। देन देयर इज अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि आप एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाते हैं कि भाई I will take the first person, then after 9 person, the 10th person would be one, I will take again that person for my sample। कि आप स्पेसिफिक एक सिस्टमेटिक वे से चल रहे होते हैं कि हर जो है वो 10वां लाइक पर्सन जो है वो मैं अपनी रिसर्च सैंपल के लिए लूंगा। देन दैट इज द देन उसके बाद कन्वीनियंट सैम्पलिंग होता है। उसमें ये होता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके लिए पॉसिबल है, लाइक इट्स समथिंग के जो आप इजीली एक्सेस कर लें। इट इज अबाउट के कन्वीनियंट है आपके लिए कि भाई दूर नहीं जाना, मसले हैं। देन आई एम फेसिंग डेली क्राइसिस ऑफ I'm lacking in money, classes of different instruments, तो आप उसके लिए ना कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप जब मैं ये इस सेंस में देखेंगे, जब आप अपनी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब आप अपना रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वो मेथड में आप किस तरह से वो रिसर्च कर रहे हैं। सपोज करें आप बाइक पे जा रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं कराची में अपने सैंपल ढूंढने के लिए, देन यू हैव टू राइट दीज ऑल केयरफुल कि भाई मैंने जो वो सिस्टमेटिक अप्रोच इस तरह से फॉलो की है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन इज क्राइटेरिया इज वेरी important and very simple as well कि आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं, यू कैन नॉट इंक्लूड ऑल पीपल, यू नीड टू मेक स्पेसिफिक क्राइटेरिया। और अगर उस क्राइटेरिया पे जो आपके सैंपल है वो कंप्लीट हो रहा है, देन यू इंक्लूड दैट पर्सन, अदरवाइज वो एक्सक्लूड कर देंगे। दैट वुड बी योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। Data analysis, I will discuss this in next chapter as well। So reliability और validity बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर के लिए। इसमें आप बेसिकली चेक करते हैं कि आपकी डेटा कितनी वैलिड है, कितनी रिलायबल है। आप कंसिस्टेंसी चेक करते हैं रिलायबिलिटी में, और उसके अलावा एक्यूरेसी एंड ट्रूथफुलनेस चेक करते हैं आप अपने वैलिडिटी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो आप डिफाइन करती हैं कि आपकी रिसर्च जो है वो अनबियास्ड है, एंड इट टोटली फॉलोड ऑल द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। तो ये आपने जो पार्टिसिपेंट लिए हैं उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का केयर किया है या नहीं किया है। अगर एनिमल या ह्यूमन ट्रायल है तो उस पे आपने स्ट्रिक्ट रूल हैं वो फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। वो आपका सॉरी वो चीज़ें जो लास्ट वाली हैं वो एथिकल कंसिडरेशन में आ जाएंगी। लेकिन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपका ये होगा कि आपकी डेटा जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब कि आप एक चीज़ कर रहे हैं, वो बार-बार दोबारा सेम सर्कमस्टेंसेस में वही रिजल्ट दे रही है, चेंज हो रहे हैं, तो दैट वुड बी योर रिलायबिलिटी। और
वो रिजल्ट जो है वो वैलिड हैं या नहीं है, दैट वुड बी योर वैलिडिटी एज वेल। तो एथिकल कंसिडरेशन इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ रिसर्च के आप जो है वो एथिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जब आप क्लिनिकल रिसर्च कर रहे होते हैं। वेल दिस इज द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द आपका पेपर का जो रिजल्ट होता है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर को शुरू करें जब आप पेपर लिख रहे होते हैं। तो उसके अलावा इसका जो मेन पोर्शन होता है वो रिजल्ट्स होते हैं आपके। अच्छा, रिजल्ट में जिस तरह से हमने देखे पहले कि रिजल्ट वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रिसर्च आपने की है उसमें क्या फाइंडिंग्स आई हैं, उसने आपके ऑब्जेक्टिव्स को फिल किया या नहीं, उसने आपके रैशनल को या हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव किया या नहीं, वो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डिफाइंड इन योर रिजल्ट्स। तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह से पहले हमने डेटा को देखा, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। और जो क्वालिटेटिव होते हैं उनमें नॉमिनल, ऑर्डिनल होते हैं। नॉमिनल से मुराद जिस तरह से नाम आ गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, दैट इज दे आर ऑर्डरलेस, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सॉरी। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में इस तरह से होता है कि आप ऑर्डर्स में लिखते हैं, जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव पोजीशंस हो गई, या 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ, तो ये एक ऑर्डर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो ऑर्डर हो जाएंगे। और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं। लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। अच्छा, स्टैटिकल टेस्ट, आप डेटा एनालिसिस के लिए स्टैटिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, आप जो है वो इन टेस्टों की बुनियाद पे अपने रिजल्ट बनाते हैं। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई टेस्ट कौन सी चूज करनी चाहिए। देयर आर मल्टीपल टेस्ट, हम देखेंगे आगे। तो वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ डेटा को, डेटा डिपेंड करता है डेटा पे, द टाइप ऑफ डेटा जो आपके पास है, कैटेगोरिकल है या जो है वो नॉमिनल है, सिंपल कितना है आपका। और उनमें जो है वो वन सैंपल है या मल्टीपल टाइप ऑफ सैंपल हैं आपने रखे हुए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। देन इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर पर्पस। सो हेयर सिंपली मैंने बहुत ही इजी किया हुआ है कि जब आप एसपीएसएस में डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपने क्या-क्या करना होता है। सिंपली आपने एक 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है कि टेस्ट जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो सही होना चाहिए। अच्छा, जब आप देखें कैटेगोरिकल वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल उम, जिसमें सॉरी, कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होता है जिसमें मतलब कैटेगरीज़ हों, ठीक है? जिस तरह से मेल, फीमेल हो गया, जेंडर की कैटेगरीज़ हो गई, एज की कैटेगरीज हो गई। तो वो जब भी हो तो कैटेगरिकल को आपने हाइपोथेसिस प्रूव करना है, तो या आपने अपने रिजल्ट को जो है वो वैलिड करना है, तो आपने सैंपल प्रोपोर्शन टेस्ट यूज करनी होगी व्हाइल हैविंग द एसपीएसएस एनालिसिस। खैर वो कभी किसी दिन हम वी कैन हैव अनदर वेबिनार, अनदर मीटिंग, जिसमें मैं आपको एसपीएसएस सारा बता दूंगा किस तरह से यूज होता है। और जब आपके पास टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स हों तो आप काय स्क्वायर टेस्ट करते हैं, जिस तरह से जेंडर हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है। डायबिटीज का यस और नो कर दें और जेंडर का मेल फीमेल कर दें, तो आपके पास काय स्क्वायर टेस्ट होगा। और जब आपके पास वन न्यूमेरिकल वेरिएबल हो, जिस तरह से आपकी हाइट हो गई, जैसे कि हाइट मतलब वी हैव 20 पीपल्स, तो उनकी हाइट हमने चेक की, तो हम उनको नंबर्स में लिखेंगे। हम उनकी कैटेगरीज नहीं बना सकते, हम उनको नंबर्स में लिखेंगे। एज लॉन्ग एज आप अगर कोई इस ऐसे कह दें कि कोई वेरिएबल देकर, जैसे ए बी सी वेरिएबल देकर आपने एक क्राइटेरिया बना लिया है हाइट का, तो वो अलग प्रॉब्लम है। लेकिन अदरवाइज वी हैव टू राइट इट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अगर दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं उसके लिए हम कोरिलेशन टेस्ट लगाते हैं, जिसमें जैसे हाइट और वेट हो गया। एंड देन अगर एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, देन वी यूज अनोवा टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अब हमें अपना हाइपोथेसिस प्रूव करना होता है कि भाई जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में बात की वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें सारी आप अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, उसकी रिसर्च में आप मोस्टली
जो है वो एसपीएसएस अप्लाई करते हैं। काफ़ी जगहों पे आप अपने जो है वो रिज़ल्ट सपोज़ करें आपने मैटलैब से लिए हैं, तो मैटलैब के रिज़ल्ट के स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। सपोज़ करें आपने लैब व्यू से लिए हैं, देन यू कैन पुट द लैब व्यू स्क्रीनशॉट। और रिज़ल्ट आपने जहाँ से भी लिए हैं और अगर आप टेबल्स में उनको रिप्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, देन यू कैन मेक द टेबल्स एज़ वेल। तो 2 मेथड्स लाइक बेसिकली होते हैं, आप ग्राफ्स में या टेबल्स में अपनी डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और तीसरा इमेजेस में, देन दीज़ ऑल आर वेरी एप्लीकेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और अगर आप की डेटा इस टाइप की है कि आप जो है वो एसपीएसएस या एक्सेल में एनालिसिस करना चाहते हैं, देन यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दीज़ ऑल टेस्ट्स। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो डिस्कशन है का है। डिस्कशन में एक्चुअली आप अपने रिजल्ट सेक्शन में आप सिर्फ अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कशन में आप डिस्कस करते हैं उसको कि भाई एक लाइक रिजल्ट में आप न्यूमेरिकल वे में बताते हैं कि भाई 20% मेल थे, 50% फीमेल थी, लेकिन आप जो डिस्कशन में है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं उनको कि क्या-क्या चीज़ें थी और क्या-क्या आपके रिजल्ट्स आए, कैसे आए, सॉरी कैसे नहीं बल्कि क्या-क्या रिजल्ट आए। यू हैव टू पुट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्कशन प्रॉपर्ली के ताकि लोग समझ सकें। टेक्निकल वर्ड उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो यहाँ पे आपको समझ जाएँ कि आपकी रिसर्च है क्या। और आप ऑल्सो उसके अलावा आप जो है वो प्रीवियस रिसर्च से आप अपने रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोज़ करें कि आपने कुछ भी फाइंड किया और सपोज़ करें आपने कोई भी चीज़ भाई डायबिटीज़ जो है वो जेंडर से रिलेटेड डिपेंड करती है। वो जेंडर एंड डायबिटीज़ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो आप प्रीवियस रिसर्च से उस पॉइंट को सपोर्ट करेंगे या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि भई फलाँ बंदे ने जो रिसर्च की थी अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च तो ये कोरिलेटेड है, उनकी रिसर्च के मुताबिक भी है। या अगर उसके अपोज़िट है कोई रिसर्च देन यू आल्सो मेंशन दीज़ ऑल रिसर्चेज़ इन द कंपैरिज़न विथ योर रिजल्ट। सो कंक्लूजन में फाइनली आप अपना एक प्रिसाइज़ कंक्लूजन बताते हैं। पहले सबसे पहले आप अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या था वो लिखते हैं, फिर आप उस ऑब्जेक्टिव को आंसर आपकी रिसर्च ने कैसे किया है वो सारा कंक्लूजन में आप लिखते हैं, समराइज़ करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को। So you put the limitation of your research, the limitation क्या-क्या हैं, then you put also the future recommendation, final thoughts, that एक लास्ट जिसे कहते हैं कि फाइनल सेंटेंस लिखते हैं आप के भाई जिसमें आपका फाइनल एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस को मिस किया था, दिस आवर लास्ट स्लाइड। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी चीज़ आप जहाँ से लेते हैं उनकी साइटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? साइटेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट अदरवाइज़ इज़ एकेडमिक मिसकंडक्टेंस। एकेडमिक मिसकंडक्टेंस अगर कहीं पे भी इन योर एनीवेयर ऑफ एनी स्टेज ऑफ योर करियर सपोज़ करें आपने पेपर 10 साल पहले लिखा है लेकिन 10 साल बाद अगर वो पता लग गया कि भाई आपने जो है मिसकंडक्टेंस किया है देन इट विल रूइन योर ऑल प्रोफाइल। तो साइटेशन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। आप उसको साइट ज़रूर करें जहाँ से आपने चीज़ें ली हैं। अच्छा लेट्स मूव द प्रीवियस स्लाइड आई नीड टू शो यू समथिंग। ओके, सो हियर हियर इन इंट्रोडक्शन देखिए 2 तरह की साइटेशन होती है। वो आप अम, ये जो साइटेशन है जब आप सेंटेंस के लास्ट में दे रहे होते हैं उसे कहते हैं कि पैरेंथेसिस साइटेशन मतलब के पैरेंथेसिस में दे रहे होते हैं, ठीक है? और जो आप शुरू में दे रहे होते हैं सपोज़ करें आप लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ अली और समवन तो ये जो है वो आपकी नैरेटिव साइटेशन है जो कि मोस्टली लिटरेचर रिव्यू में यूज़ होती है जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं पोर्शन और जब आप इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड लिख रहे होते हैं तो मोस्टली जो है वो आपकी पैरेंथेसिस साइटेशन यूज़ होती है, इसका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल कीजिएगा। और साइटेशन के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, आप सपोज़ करें यहाँ पे अगर IEEE का या कोई और फॉर्मेट जो नंबर्स में है, तो आप इस तरह से फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो ब्रैकेट देकर यहाँ पे, ठीक है? सपोज़ करें 1 है, तो यहाँ पे इस तरह से आगे होगा, ठीक है? हाँ, तो इस तरह से ब्रैकेट देंगे, अगर 1 है, तो देन यू कैन डू लाइक दैट और यहाँ पे सिर्फ़ नंबर आएगा।
अगर आपने जो है वो नैरेटिव साइटेशन की है तो इस तरह से होगी वो साइटेशन। तो रेफरेंसेस के अलग अलग टाइप होते हैं, आप मैन्युअली रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, वर्ड से यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप जो है वो अच्छा सॉरी वर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो आपके पास अलग अलग मैन्युअली ऑप्शन भी आ जाते हैं। मेंडले रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर भी है, मेंडले से बिल्कुल इजी हो जाता है, उससे आप जो है वो सॉफ्टवेयर आप जो है वो कंप्लीटली आपने जितने भी आपके पास जो रेफरेंस है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से, और आपके पास वो हमेशा सेव रहते हैं। तो आई वुड रियली प्रीफर टू द मेंडले। मेंडले बहुत इजी है उसका इंटरफेस। उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। ये हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक होगा आई होप सो। सो या तो मैं सिंपली जो है वो आपको या जी, तो ये मेंडले का इंटरफेस है। आपके पास यहाँ से जो है वो आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो आर्टिकल कंप्लीटली यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले पहले मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि एक अपने नाम का या किसी भी नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दें। तो उस फ़ोल्डर में आप यहाँ से जो है वो आर्टिकल जो है एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। देन इफ यू वांट दीज़ ऑल थिंग्स देन आई कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, आई कैन ब्रिंग दीज़ थिंग्स इन द मेंटल फ्रॉम हियर। और आप पूरा एक फ़ोल्डर भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर भी आप कर सकते हैं, ऐड फ़ोल्डर, ऐड फाइल्स फ़ोल्डर एंड मैन्युअली ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा आप जब इंस्टॉल करते हैं मेंटले तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखें सॉरी इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे मेरा जो आपके यहाँ जब आप शुरू-शुरू में करेंगे तो आपका इंस्टॉल आएगा, यू हैव टू इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन, और आपने ये भी इंस्टॉल ज़रूर करना है। मैंने तो अभी तक नहीं इंस्टॉल किया था, लेकिन बट देयर वाज़ सम इश्यूज़। तो आप ये भी इंस्टॉल करेंगे तो ईज़िली आप गूगल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको काफ़ी ऐसे आर्टिकल हैं जिसकी पीडीएफ फाइल या कंप्लीट नहीं मिल रहे हैं तो वो मेंडले ने ऑलरेडी बाय किए होते हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। तो इट्स फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनीवेयर एंड यूज़ इट ईज़िली। इट्स लेकिन एक कोशिश कीजिएगा कि आप कभी भी मेंडले और एंड नोट जो हैं वो दोनों एक साथ नहीं चलाएं, so it would cause a great problem for you people. So that was complete things, and I hope it was worthy enough. Thank you. If you have any question you can please ask now. Insights and expertise with us today. It has been truly enlightening discussion. Thank you to our attendee for tuning in. Now we move on to the question answer session. I'd like to remind our attendee to ask their question. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आप सबके मशहूर हैं कि आपने आज का वेबिनार ज्वाइन किया, और आखिर के ऊपर अली रज़ा साहब के भी मशहूर हैं। और थोड़ा सा बज़्म के हवाले से बताते चलें कि बज़्म-ए-BME एक सोसाइटी बनाई गई थी, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारी फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि मेरे ख्याल से मुमताज़ तरीन और दरख्शां फील्ड है, तो उसके वो प्रमोशन करने के लिए, उस फील्ड की अहमियत को उजागर करने के लिए हम सब लोग आगे मिलकर बढ़ें, और मिलकर अपने तावन से हम आगे जा सकते हैं। तो उसके लिए बज़्म का आगाज़ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म में अभी तक 1200 से ज़्यादा मेंबरान हैं। कराची से लेके तो कश्मीर तक हमारे पास स्टूडेंट्स इस बज़्म में मौजूद हैं, तो हम यूँ ही आगे बढ़ के मिलके काम करते रहेंगे। और आज का जो हमारे पास बेसिकली वेबिनार था, वो रिसर्च के हवाले से था। तो क्वालिटेटिव रिसर्च ज़रूरी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत कम होती है। और अगर कहा जाए, सॉरी, अ, एक चीज़ है कि 100 सुनार की एक लोहार की। तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा होता है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ पब्लिश करें हम, उसका कोई ना कोई मार्केट वर्थ हो, और वो मार्केट को फ़ायदा भी दे, और रियल वर्ल्ड में हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सके। और इसके अलावा ये बात है कि पब्लिकेशन में अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप ध्यान कीजिएगा कि जब भी आप पेपर दें, पेपर में अथर्स वही हों जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। तो बहुत से बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये रिवाज है कि बहुत से लोग खुद से अपना नाम ऐड करवा देते हैं जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया होता है, और ये रिसर्च के एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो हमें मिलकर ये रिसर्च के एथिक्स को फॉलो करना होगा, ताकि सब चीज़ अच्छे से हो सके। और इंजीनियर अली रज़ा साहब के हम बहुत मशहूर हैं, इस वजह से भी क्योंकि वो शुरू से ही बज़्म के साथ जुड़े हैं, और हमेशा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड के फ़रोग़ के लिए कोशिश करते हैं। और अगर आप देखें तो वो अपनी मेहनत से इस वक़्त साउथ कोरिया में पहुँचे हैं। और सीजीपीए के हवाले से अगर एक बात की जाए, तो बहुत से हमारे तलबा ये सोचते हैं कि सिर्फ़ सीजीपीए भी वो चीज़ है जिसकी बेस के ऊपर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, तो ये गलत है। इंजीनियर अली रज़ा साहब का सीजीपीए 3 से ऊपर था, और पर 3.5 और 3 और 3.5 के दरमियान था, लेकिन इनकी जो मेहनत थी, और इनका जो अपनी फील्ड के लिए कह सकते हैं कि उनसे थी अपनी फील्ड से, तो इन्हें आज साउथ कोरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की स्कॉलरशिप मिली है, और हम इनके मशहूर हैं, और आगे भी इनके साथ मिलकर इस तरह के सेशंस करवाते रहेंगे। और आखिर के ऊपर सबात के भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। सबात हमारी बहन लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों से हैं, ग्रेजुएट हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, और शुरू से ही बज़्म के कामों में हर दम तैयार रहती हैं, और हर दम जितना भी हो सकता है कंट्रीब्यूट करती हैं। तो आप में से भी कोई भी कभी भी अगर बज़्म में कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस सेशन में। मज़ीद अगर किसी को पूछना हो तो बराए करम बताइएगा, फिर हम सेशन खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपसे ये पूछना था कि इज इट नेसेसरी कि हम अपना एफआईपी और अपने फ्यूचर जो मास्टर फील्ड है वो बिल्कुल सेम रखें? मतलब उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं? एफआईपी का सेम रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप इंटरनेशनली अपनी डिग्री परस्यू करना चाह रहे हैं मास्टर्स की। देखें, एक बात के बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास एफआईपी जो है वो आपकी मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स प्रोग्राम जिस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड है, तो ये आपके चांसेस बहुत बढ़ा देता है। सपोज़ करें कि आप जापान की बात कर रहे हैं, या साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, या चाइना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्रोफ़ेसर बेस्ड स्कॉलरशिप पे जाते हैं। इवन यूके में भी आप प्रोफ़ेसर बेस्ड जाते हैं, और काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे प्रोफ़ेसर बेस जाते हैं। तो वहाँ पे प्रोफ़ेसर आपके जो उनकी रिसर्च है, या कि सपोज़ करें आप जिस फ़ील्ड में जा रहे हैं, ऑफ़ कोर्स जिस प्रोफ़ेसर के पास जाएँगे उनकी रिसर्च भी उसी फ़ील्ड में होगी। तो अगर आपकी प्रीवियस रिसर्च भी उसी फ़ील्ड से रिलेटेड होगी, तो वो ज़्यादा फ़ैसिनेटेड होते हैं। वो ज़्यादा मतलब कि आपको प्रेफ़रेंस देते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है बजाय दूसरे स्टूडेंट से जिनसे मीटिंग्स हुई या जिन्होंने अप्लाई किया। सो या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट कि आपका वो फाइनल, लाइक अगर आपने डिफरेंट कर दिया कि बहुत बड़ा मसला होगा, इट्स नॉट दैट लाइक दैट, कोई मसला नहीं है। बट अगर है तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, अदरवाइज़ इट्स वेरी ओके कि आप क्योंकि अंडरग्रेड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। अंडरग्रेड जो है वो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, लैब्स कर रहे होते हैं। तो उस सेंस में इट डज़ नॉट मैटर टू लाइक
that much, but it's really important कि जब आप जिस फील्ड में जा रहे हैं को तो प्रोफेसर वगैरह इस चीज को प्रिफेयर करते हैं, अदरवाइज यार यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स, इट्स रियली फाइन if someone don't have, अगर है तो it's very positive. अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या पब्लिकेशंस के बगैर भी स्कॉलरशिप मिलना पॉसिबल है अब्रॉड के लिए, और अगर नहीं है तो अगर आप लास्ट ईयर में हैं और अभी तक आपकी पब्लिकेशंस नहीं है, आपका रिसर्च पेपर नहीं है, तो अभी से आपको मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं और पब्लिकेशंस के बगैर भी स्कॉलरशिप मिल सकता है? देखें, पब्लिकेशन के बगैर बिल्कुल मिल सकता है, इवन दो मास्टर्स वालों को भी मिल सकता है, इट इज़ नॉट द मैंडेटरी कि आपको पब्लिकेशन से ही मिले, और काफ़ी हैं जिनकी पब्लिकेशन है और उनको भी नहीं मिलती कभी-कभार। तो डिपेंड करता है, अगर पब्लिकेशन जो है वो बेसिकली स्कॉलरशिप अगर आपके पास सपोज करें पब्लिकेशन नहीं है, आप किसी प्रोफेसर के ज़रिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो पब्लिकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी सीजीपीए कम है, अगर आपके पास और एक्सपीरियंसेस कम है, तो आपकी पब्लिकेशन वो सारे फिल कर देती हैं। that has very positive impact on your like profile. कुछ चीजें होती है नेसेसरी, कुछ चीजें होती है जिनका इम्पैक्ट जो चांसेस बढ़ाती हैं। पब्लिकेशन इज नॉट नेसेसरी इन एवरी यूनिवर्सिटी, और बल्कि अंडर ग्रेड के लिए पब्लिकेशन एक लाइक चांसेस बढ़ाने वाला ऑप्शन होता है आपका। तो अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है फाइनल ईयर तक, तो मैं ये कहूँगा कि आप एक अच्छा सा प्रपोजल बनाएं, देन इफ यू वांट टू ट्राई थ्रू द प्रोफेसर्स स्कॉलरशिप, तो वो प्रपोजल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन मेन थिंग प्रपोजल में ये होनी चाहिए, वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, यानी कि जो आपका आइडिया है वो न्यू होना चाहिए। इंटरनेट से लेना, ये लिया हुआ या इंटरनेट से, इंटरनेट बेस्ड चीज़ें ना हो। तो या दिस इज द सिनेरियो। तो अगर आप 6 सेमेस्टर में हो, मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट होने में टोटल 1.5 ईयर रहता हो, तो अभी से अगर आप रिसर्च पेपर लिखें और आप अगर अभी से पब्लिकेशन करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं डिग्री कंप्लीट होने तक? जी ऑफ कोर्स बिल्कुल है। अगर आप अभी से पेपर्स अगर 6 सेमेस्टर से करना शुरू कर रहे हैं, देन यू आर अहेड ऑफ मेनी पीपल। आप बहुत लोगों से आगे जा रही हैं अपने प्रोसेस में, अपने काम में। तो अगर देखें ना, अभी आप पेपर सीखेंगी पब्लिश करना है, इवन दो आपका पब्लिश हो भी जाए नहीं भी हो जाए, इट्स अनदर मैटर। अगर आप सीखें भी तो आपके लिए मास्टर्स में और पीएचडी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो चीज़ें। You will be ahead than your colleagues in these all things. So yeah, it's very important. और इन लास्ट 2 years में आप इजीली पब्लिश करवा सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील कि आप एक पेपर कंप्लीट हुआ आपका, देन यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ जर्नल्स एंड उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करके आप जो है वो अपने सुपरवाइजर के कंसेंट से वहाँ पे आप जो सबमिट करवा सकते हैं। और कुछ ऐसे जर्नल होते हैं जो 3 मंथ लेते हैं, कुछ 2 मंथ लेते हैं, कुछ 6 मंथ लेते हैं, कुछ 4 मंथ लेते हैं, एंड few takes 1 year complete. So it depends on the situation. Otherwise, it is really possible. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है कि गैप्स कैसे फाइंड किए जाते हैं किसी भी फील्ड में? देखिए सर, आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे, और लिटरेचर देख, एक पेपर आपने निकाला, कोई भी टॉपिक का पेपर निकाला, आप जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा, उनका इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि भाई जो ये स्टडी की गई है, वो जो इंट्रोडक्शन में मेंशन्ड गैप्स है उनको फिल करने के लिए की गई है। वो सारे वो बताएंगे कि भाई दूसरी डिवाइसेस में ये मसला था, उसमें ये था, और अदर रिसर्च थी उसमें ये मसला था, तो हम उसको सॉल्व करके अपना डिवाइस दे रहे हैं। लेकिन उस स्टडी का अगर आपने गैप जानना है तो आप उसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि भाई लिमिटेशंस क्या हैं हमारे स्टडी की। आप उनके रिजल्ट्स को देखेंगे कि भाई रिजल्ट्स में क्या मसला है इनके। ठीक है, तो आपका इवन तो डिस्कशन में भी, बट मोस्ट प्रोबेबली लिमिटेशन जो है आपके कंक्लूजन में होती हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, रिजल्ट से देख सकते हैं कि भाई चीजें एक्यूरेट हैं या नहीं है। So yeah, you can find the gaps from these both portions about any research.
और फिर आप अपना प्रपोजल देंगे भाई आप उन गैप्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका। प्रीवियस स्टडी जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रिसेंटली हो क्या रहा है। रिसेंटली जो है वो कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। हम लोगों की रिसर्च जो है वो अनऑर्गेनिक वे से की गई है और ऑर्गेनिक वे ये है कि आप सबसे पहले जो है वो अच्छे से लिटरेचर पढ़ें उन चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा जो एफआईपी है अगर उसका हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं तो वो क्या इनफ होगा स्कॉलरशिप के लिए? देखें पहले मैंने बताया कि स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है? ह कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं मैंडेटरी होती हैं। सपोज़ करें कि स्कॉलरशिप है जिसमें आपने जो आपकी सीजीपीए है वो 3 इम्पोर्टेंट है। आपको एनी हाउ 3 कंप्लीट करने हैं। अगर आप कहें कि आपकी 2.9 है और उसके साथ-साथ आपके 10 पेपर हैं, अलग सर्टिफ़िकेशन है, तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई 3 होना ज़रूरी है। एक तो हो गई ये चीज़ कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, अब काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी प्रोफ़ाइल बेहतर होती है, तो उनके चांसेस बढ़ते हैं। तो जो रिसर्च आर्टिकल होते हैं, आपके सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, आपका मोटिवेशन लेटर होता है, ये सारे चांसेस इंक्रीज़ करते हैं आपके। ये मैंडेटरी नहीं होते कभी भी। मैंडेटरी वो होता है जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्कॉलरशिप होता है, वो आपने ज़रूर कंप्लीट करना होता है, वो आपका मैंडेटरी चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो आपके प्लस पॉइंट्स हैं, दे विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। Thank you to our audience. Uh, Thank you to our audience. Thank you to Mr. Ali Raza for tuning in. Remember the vital role of biomedical engineering research. Continue to shape the future of healthcare. Stay curious, stay innovative, and until next time, goodbye. Goodbye.